हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हो। आज देखते हैं एक वीडियो मेरे बहुत ही फेवरेट हिस्टोरियन की। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे फेमस नहीं है, बट इंडियन है। उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। और क्योंकि मुझे पर्सनली चंगेज़ खान एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर लगता है और उन्होंने उसके बारे में बहुत सारे एक डिटेल्ड 1 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके लाइक सामने रखे थे, एक्सप्लेन किए थे और बताया था कि क्यों वो एक अच्छा इंसान था और एक लाइक अच्छा इंसान नहीं बट एक पॉजिटिव फोर्स था मुकाबले की एक टायरेंट के, जैसा कि उसे जनरली समझा जाता है दुनिया में। एक फैक्ट है उसके बारे में कि उसकी कबर कभी नहीं पता चली कि वो उसको कहाँ दफनाया गया। फाइनल उसका क्रीमेशन किधर हुआ है, क्योंकि जितने लोग भी शामिल थे उसमें उन सबको मरवा डाला गया लोकेशन को गुप्त रखने के लिए। और इसके बारे में एक वीडियो है जो कि मैं आज देखना चाहता हूँ, तो लेट्स वॉच। Why was Genghis Khan's tomb never found? Why does it remain a mystery? So this is one of the biggest mysteries of all time, isn't it? Why has his tomb never been found? Where is Genghis Khan's tomb? And people from the West have been seeking his tomb since the time of Kublai Khan, his grandson. So Marco Polo, the Italian merchant and traveler, went to China during Marco Polo's time. He spent a few years in Marco Polo's court, and he heard of this story that Genghis Khan's tomb was. He heard a very fantastic story about his funeral. It said that everybody who saw the funeral procession was killed, and an enormous hole was dug. His body was buried there, and the ground was stamped over by horses, and a river was diverted over the area so that nobody could ever find it. And then all the soldiers and people who participated in the funeral procession, they were also killed. So no. तो यार, अगर आप मान लो आपने एक गड्ढा खोदा, उसमें कुछ डाला और गड्ढे को ऊपर से भर दिया, तो यानी कि पहले जितनी कॉम्पैक्ट मिट्टी नहीं रही। और वैसे भी जब पानी किसी जगह से गुजरता है तो वो मिट्टी को काटता हो जाता है, और फिर आपने वहाँ से रिवर डाइवर्ट कर दी तो वो तो उस पूरी मिट्टी को काट के अंदर जो सामान है उसको बाहर नहीं निकाल देगी रिवर। No one knows today, even at the time of Marco Polo, where this tomb was. And the belief in among Western historians and in the West is that Khan's tomb must have an enormous amount of treasure. So whoever discovers this tomb अच्छा, will ये भी become the richest एस्पेक्ट। person in the world. And that's why there has been this mad rush for centuries to discover the location of Genghis Khan's tomb. Even now, people are trying to go to Mongolia and discover this tomb. There have been a couple of National Geographic documentaries as well about the location of this tomb. It has never been found, and I'm going to tell you something. His tomb is never going to be found. It remains a mystery because it सपोज टू was बी। decided to keep it a mystery. So Genghis Khan was not a stupid person. He knew what happens to the tombs of conquerors. Those tombs are eventually discovered and desecrated. डेजिग्रेटेड यानी। Take the Mughal Emperor Akbar, the Turkic Emperor एक बात बोलूँगा मैं इसके बारे में। Akbar. After he died, a century or so after he died, Delhi was conquered by the Sikhs. His tomb was ransacked and his bones were fed to the dogs of Delhi. That's what happened to Akbar. If you look at the tomb of Timur, it was opened by Soviet archaeologists. His body, his skeleton was taken out, it was disarticulated, it was subjected to all kinds of medical and other tests. His skull was used as a model for reconstructing his face. So it is essentially a desecration of his tomb. And this has happened to emperors in Egypt and all kinds of other people. So Genghis Khan knew what happens when the tomb of a conqueror is discovered, especially when it contains treasure. There are tomb robbers everywhere. Now, the Mongols had a practice called sky burial. It was a practice that was also present and prevalent in Tibet. So, when somebody dies, their body is exposed on a hilltop to the elements. It is devoured by vultures and crows and other birds, and it goes back to the nature. And its spirit is carried away to wherever it is supposed to go. It's called a sky burial. It is a legitimate funerary practice in Mongolia,
And Genghis Khan died in सेम प्रैक्टिस जो पारसी समुदाय है जिसको ज़ोरोआस्ट्रियन भी कहते हैं, उनके अंदर भी सेम प्रैक्टिस है. आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि 1970s 60s तक इंडिया में भी वो एक हाई प्लेस पे ले जाके बॉडी रख देते थे किसी बिल्डिंग की छत पे जो उन्होंने डेजिग्नेट की थी इसी काम के लिए. और वल्चर्स और इस तरीके के जो पक्षी होते हैं दूसरे जो लाइक डेड बॉडीज़ को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैं अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा. लाइक जो क्लीन करते हैं जनरली कार्कसेस को, वो उस तरीके के पक्षी आते हैं और वो उसे खा जाते हैं, एंड द बॉडी गोज टू द एलिमेंट्स एज ही सेड. या तो मैं अभी तक अवेयर था, मुझे मंगोलिया और तिब्बत के बारे में नहीं पता था, बट मैं पारसीज़ के बारे में डेफिनेटली अवेयर था कि उनके अंदर ये ट्रेडिशंस हैं. China. He died during the reconquest of the Xixia dynasty in northern China. Now, his ancestral homeland is the Khenti Khan Mountains in northern Mongolia, which is approximately 1500 kilometers away. Now, to transport his body all the way back to Mongolia would take several months, and his body would decompose and rot in the meanwhile. And I don't think the Mongols would want to subject their body, the body of their great Khan, to such humiliation. So what I believe is that after Genghis Khan died, his body was subjected to a sky funeral, a sky burial, and that is what happened. I don't think his tomb is present anywhere in Mongolia. I don't think he was entombed anywhere. I think his body was given up as a sky funeral, which is a very dignified thing. And because it happened so far away, because his death happened so far away from the place where he was born, I think that is the most logical explanation of how his funeral took place. And like I have explained before, he was not interested in wealth. He was never motivated by a desire to get wealthy, and therefore this belief that his tomb would contain unimaginable amounts of wealth, it is a ridiculous assumption. ओके. पहली बात मैं यही सोच रहा था कि मेरा कभी ध्यान ही नहीं है कि चंगेज़ खान की जो टूम है उसमें बहुत सारा खजाना भी हो सकता है. पता नहीं, मैं शायद डम्ब हूँ इसलिए. पर अगर कोई बादशाह या कोई कॉन्करर नहीं चाहता कि उसकी टूम को खोजा जाए और उसकी बॉडी को पा लिया जाए, तो वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ रखेगा ही नहीं उसके पास जो लोगों को अट्रैक्ट करे. आई मीन सेंसिबल बात तो यही होगी कि मत रखो चीज़ ऐसी जो बंदा पैसे के पीछे भागता है. सोना, पैसा, जवाहरात, जो भी है, खजाना, जिसको चाहिए प्राइवेसी, जो कि उसको चाहिए, तो वो रखेगा ही क्यों ऐसी चीज़. शहद जो कि जिसको देख के कि मक्खी आए उसके पास. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. तो आई थिंक ये सही बात है कि इट इज़. और हाँ, इन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जंगीज़ खान वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन मनी. ही वाज मोर इंटरेस्टेड, आई मीन मोर, ही वाज एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन पावर, एंड विद पावर मनी फॉलोज. ये इनका लॉजिक है. मुझे याद है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था. और उस हिसाब से या वो क्यों रखेगा पैसा अपनी कवर के अंदर जहाँ पे कि उसको ये होगा कि लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि पैसा ढूंढने तो लोग डेफिनेटली आएंगे, उसको ढूंढने आए चाहे आए या ना आए. एक चीज़ ये. और लेट्स सी इफ ख़त्म हो गया अगर तो. So my belief, my strong conviction is that his funeral was a sky funeral, and his tomb doesn't even exist, and that's why his tomb has never been found, and that's why it will remain a mystery to those who believe that he was buried somewhere. Why was Genghis? ओके. या मैं कह रहा था ना कि जब वो बता रहे थे कि डेड बॉडीज़ को डेसिक्रेट करते हैं या फिर रिमेन्स को डेसिक्रेट करते हैं, इससे मुझे एकदम से याद आ गया. देखो, जब 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 अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फेथ जो उनके 4 राशिदुन खलीफ्स हैं, उनमें जो फोर्थ खलीफ के बाद अली जिनका नाम है, जो डायनेस्टी आई, उस डायनेस्टी का नाम है उमैयद डायनेस्टी, जो कि हिस्टोरिकली प्रूव्ड है. ये फेथ का पार्ट नहीं, ये आई मीन इसकी हिस्टोरिसिटी क्रॉस चेक्ड है. उमैयद डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई उसको कहते हैं अब्बासिद डायनेस्टी. उस एरिया में पूरी जो कैलिफेट थी, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम द टिप ऑफ अटलांटिक इन मोरक्को अंटिल लाइक इंडिया के बॉर्डर्स तक, और नॉर्थ में साउथ कॉकेसस तक, इनफैक्ट नॉर्थ कॉकेसस तक भी.
और पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला एंड एवरीथिंग, ये सब उनके कैलिफेट के अंदर आता था। तो जब अब्बासिड्स ने ओवरथ्रो किया उमैयद्स को, तो उसके बाद उन्होंने उनके जितने भी रूलर्स थे उनकी कब्रों को खोदा, और कब्रों में से जो भी निकला, मतलब हड्डी या जिस भी कंडीशन में, मोस्ट लाइकली हड्डियाँ ही होंगी, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उनको कुत्तों को खिला दिया, उनको जानवरों को खिला दिया। सुनने में आता है कि पता नहीं तेज़ाब में नहला दिया, या पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं कि ये किया था, वो किया था, वो किया था, बट किसी ना किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया ही होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन्होंने यहाँ पे उठाया। और आई डोंट नो, मुझे पता होने के बाद भी मैंने कभी इस चीज़ को एक पैटर्न में नहीं देखा कि ऐसा सब राजाओं के साथ किया जाता है। और ये अकबर वाला सीन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था यार। ये थोड़ा सा जान के थोड़ा बुरा भी लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि अकबर को एक जनरली एक उदार राजा माना जाता है, उदार बादशाह माना जाता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे कि हाँ, उसने ये टिरनी की थी, उसने वो टिरनी की थी, तो वो भी एंड ऑफ द डे टायरेंट था। बट आपको किसी भी बंदे को अगर जज करना है तो आपको उसके जो कंटेम्प्रेरीज है ना, उसके अगेंस्ट ही उनको उसको जज करना पड़ता है। आप उसको मॉडर्न स्टैंडर्ड पे जज नहीं कर सकते। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद वो एक बेटर इंसान था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आज के टाइम के वेस्टर्न वर्ल्ड या इवन इंडिया में भी पैदा होता और मॉडर्न एजुकेशन लेता, तो शायद वो एक बहुत एनलाइटेंड लोगों में से होता और इंटेलिजेंट लोगों में से होता। बट खैर, ये एक डिफरेंट ही टॉपिक है। एनीवेज, आई मीन बहुत छोटी वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।